أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 105 سے 107 105 سے 107۔ یہ جو آگے کی آیتیں آ رہی ہیں یہ ایک اس بات کا ثبوت اور پروف ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ وہ کیسے ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اس میں نمبر 1، یہ آیت جو ہے، یہ آیتیں کسی مسلمان کے فیور میں نہیں ہیں، بلکہ مسلمان کے اگینسٹ ایک یہودی کے فیور میں یہ آیتیں اتری۔ یہودی کون؟ یہودی کون ہے؟ اللہ کے دشمن۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ سب سے بڑے مسلمانوں کے دشمن کون ہیں؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ سب سے زیادہ بڑے دشمن تمہارے یہودی اور مشرکین ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آگے کی دو رکوع ایک یہودی کے فیور میں اتارا، اور دوسرا اس وجہ سے کہ اگر اللہ نہیں ہوتا تو کیسے پتا چلتا کہ یہاں پہ کیا معاملہ ہو رہا۔ ہوا یہ تھا کہ انصار کے قبیلے بنو ظفر، اس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا توما بن عبیرق۔ کیا نام تھا؟ توما بن عبیرق۔ اس نے ایک انصاری کی ایک زرہ چرا لی۔ زرہ کہتے ہیں جو فوجی ڈریس ہوتا ہے وہ، اور آٹا بھی چرا لیا۔ چرا کر کے اپنے گھر لے گیا۔ ان صحابی کا نام تھا قتادہ بن نعمان۔ لیکن اب چوری پکڑے جانے کے ڈر سے وہ سارا سامان لے کے ایک یہودی کے یہاں رکھ دیا جس کا نام تھا زید بن سمین۔ صبح میں قتادہ بن نعمان نے دیکھا تو ان کو شک ہوا کہ یہی چوری کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کے بتایا۔ اس نے آ کے قسم کھا لی، اور اس کے پورے خاندان والوں نے مل کر کے، اس کے قبیلے والوں نے کہا کہ نہ، اب کیونکہ قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، بے عزتی ہوگی، تو سب نے اس کے فیور میں بولا کہ نہیں، توما ابن عبیرق بالکل سچا آدمی ہے، اور یہ یہودی جو ہے اللہ کا دشمن، یہ تو اللہ کو نہیں مانتا، ہماری بات سننی چاہیے، ہماری بات ماننی چاہیے۔ تو قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کو کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتے۔ اب چونکہ ظاہری جتنے بھی وٹنسز تھے سب کس کے فیور میں تھے؟ یہ توما ابن عبیرق کے فیور میں تھے، یہودی کے اگینسٹ میں تھے۔ اتنے میں یہ آیتیں اتری۔ کس کے فیور میں اتری؟ مسلمان کے اگینسٹ اور یہودی کے فیور میں۔ انا، نو ڈاؤٹ، بے شک، انزلنا، ہم نے اتارا ہے، الکتاب، یہ کتاب، یہ بک، کیسے اتارا ہے؟ بالحق، حق کے ساتھ،
सच्चाई और सत्य के साथ, ट्रुथ के साथ उतारा है। यानी इसमें जो बातें हैं वो किसी के पक्ष में और किसी के खिलाफ बायस होकर के नहीं है, सबके लिए बिल्कुल कॉमन है, नॉर्मल है, सबके लिए हक के साथ उतारा है। लितहकुमा, किस लिए उतारा है? ताकि आप फैसला करें बैनन नास, लोगों के बीच में। यहाँ पे देखिए क्या बात कही गई है, लितहकुम बैनल मुस्लिमीन नहीं कहा गया कि आप मुसलमानों के बीच में फैसला करें, नहीं, ये हक के साथ किसके दरमियान फैसला करें? बैनन नास, सारे, कोई भी इंसान हो, जब फैसले की बात आएगी, मुकदमा आएगा, केस आएगा, तो कैसा फैसला करना है? वहां मुसलमान और नॉन मुस्लिम नहीं देखना, इंसाफ के साथ फैसला करना। बिमा अराक अल्लाह, इस सच्चाई और इस सत्य के साथ फैसला कीजिए जो अल्लाह ने आपको बताया है, सिखाया है, समझाया, दिखाया है। और क्या कहा गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? वला तकुन, और मत बनिए, लिल खाइनीना, बेईमानों का क्या? खसीमा। खाइन किसे कहते हैं? खयानत से ये वर्ड बनता है, खयानत, बेईमानी करने वाला। बेईमानी करने वालों का समर्थक और उनका हिमायती मत बनिए। फिर अल्लाह ताला ने कहा वस्तगफिरिल्लाह, अल्लाह से माफी मांगी। क्या कोई इंसान खुद से कोई बात बनाएगा और अपने से बोलेगा? अब जो नॉन मुस्लिम बोलते हैं ये अल्लाह की किताब नहीं, ये किताब का स्टाइल बताता है कि इसमें कोई और बोल रहा है। खुद लिखने वाला कैसे बोलेगा कि अपने से माफी मांगो? अब मैं एक बुक लिख रहा हूं और बोलूंगा कि भाई खालिद तुम अपने से माफी मांगो, ऐसा कैसे हो सकता है? और आप अंदाज देखिए, जो इसमें स्टाइल है बात करने का, वो लगता है कि कोई सुप्रीम पावर बोल रहा है, कोई नॉर्मल आदमी नहीं बोल रहा। वस्तगफिरिल्लाह, अल्लाह से माफी मांगो। किससे बोला जा रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस बात पर? क्योंकि आपने उस यहूदी के हाथ काटने का इरादा कर लिया था। हालांकि आपकी गलती इसमें नहीं थी, चूंकि जाहिरी विटनेस था, लेकिन फिर भी चूंकि एक गलत काम हो जाता, अल्लाह ताला ने इंटरप्ट किया, इसलिए फरमाया कि आप अल्लाह से माफी मांगे। इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला क्या है? गफूर, बहुत ज्यादा हमेशा माफ करने वाला, रहीमा, और हमेशा रहम करने वाला, दयालु है। फिर आगे अब बात, यहां तक जो बात जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दी। फिर इसके बाद उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिन्होंने उसको फेवर किया था। किसको? तोमा बिन उबैरी को, वो चोर के फेवर में कहा वला तुजादिल, आप झगड़ा मत कीजिए, आप डिबेट मत कीजिए, आर्ग्यू मत कीजिए। किनकी तरफ से? अनिल्लज़ीना यख्तानूना अनफुसहुम, उन लोगों की तरफ से जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपने आप को कैसे धोखा दे रहे हैं बोलो? उन्होंने तो धोखा किसको दिया था? खयानत किससे की थी? दूसरे से की थी ना। यहाँ अल्लाह ताला बोला है अपने आप से वो धोखा कर रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि जब आप कोई भी गलत काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई ड्यूटी कर रहे हैं, वो ड्यूटी आप ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे हैं, ड्यूटी के टाइम पे आप कहीं और रहते हैं, तनख्वाह पूरी लेते हैं, तो असल में आप ये किसके साथ धोखा कर रहे हैं? किसी कंपनी के साथ, मैनेजमेंट के साथ नहीं, बल्कि अपने साथ कर रहे हैं। आपने किसी के से कुछ चुरा लिया, खयानत कर लिया और बोल रहे हैं कि फला ने किया। किसके साथ कर रहे हैं आप? अपने साथ। क्योंकि इसका गुनाह और पाप किसको भुगतना पड़ेगा? किसको देना पड़ेगा बदला? इसका आपको देना पड़ेगा। इसलिए बताया जा रहा है कि ये अपने आप से धोखा कर रहे हैं, आप इनके फेवर में बात मत कीजिए। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वानन असीमा, बेशक अल्लाह ताला किसी बेईमान, पापी और धोखेबाज को पसंद नहीं करता।
गुनहगार को पसंद नहीं करता। अब तो ये एक खास बैकग्राउंड में आए थे, हमारे लिए इसमें क्या लेसन है मुसलमानों के लिए। नंबर 1 कि जब भी कोई मामला सामने आए तो बहुत अच्छी तरह तहकीक करके, रिसर्च करके, तलाश करके तब कोई इंसान स्टेप लेना चाहिए, वरना हो सकता है कि वो क्या हो जाए, सही आदमी को इंसाफ न दिला सके और जालिमों का साथ देने वाला बन जाए। और नंबर 2, गलती पर अगर कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो, मेरा दोस्त हो, मेरा बाप हो, मेरा भाई हो, कोई भी हो, अगर वो गलती पर है और एक काफिर, एक मुशरिक, एक दुश्मन भी अगर सत्य पर है, सच्चाई पर है, तो किसका साथ देना चाहिए? आज लोग क्या करते हैं, भाई खानदान का मसला है इसलिए हम इनके साथ रहें, भाई का बेटे का मसला हो तो झूठ बोल देते हैं लोग अदालतों में जा करके। अल्लाह ताला ने आगे बोला है, क़यामत के दिन कौन इसके बारे में खड़ा होकर के बात करेगा जी, तुम इसके वकील बन के आओगे क्या? अगली आयत आ रही है कल। अगर यहाँ तुम समझते हो कि तुम्हारी फैमिली का आदमी है, तुम उसको बचा ले रहे हो झूठ बोल के, धोखा दे करके, अदालतों में जाके गवाही दे रहे हो, क़यामत के दिन तुम आओगे इसके साथ क्या? उसके साथ साथ तुम्हें भी जहन्नम में झोंके। और अगर धोखे से कभी ऐसा हो जाए तो अल्लाह तबारक, अगर हुआ है माजी में, पास्ट में, कि हमने जानबूझ करके किसी गलत आदमी के फेवर में कोई बात की है, तो अल्लाह ताला से क्या करना चाहिए? माफी मांगना चाहिए। Indeed, we have revealed to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the book in truth, so you may judge between the people by that which Allah has shown you, and do not be for the deceitful people an advocate, and seek forgiveness of Allah. Indeed, Allah is ever forgiving and merciful. And do not argue on the behalf of those who deceive themselves. Indeed, Allah does not love the one who is a habitually sinful deceiver. तो कंक्लूजन और खुलासा क्या है इस आयत का, कि चाहे मामला किसी मुसलमान का हो या नॉन मुस्लिम का हो, हमें क्या करना चाहिए? इंसाफ की बात करना चाहिए। और दूसरा इसका लेसन क्या है कि यह अल्लाह की किताब है, यह अल्लाह है जिसने एक यहूदी के फेवर में बात की और मुसलमान के अगेंस्ट में बात किया। और ये इसलिए अल्लाह की किताब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं था, उसी वक्त अल्लाह ताला ने ये आयतें उतार करके पूरे मामले को खोल के रख दिया, जो सारे लोगों से भी छुपा हुआ था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी छुपा हुआ था। ये बात साबित करती है कि ये अल्लाह ताला की किताब। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस आयत पर अमल करने की तौफीक नसीब करे।